Students. Hello students. In the previous lecture we had already started with the different types of formatting text element. Okay. In the previous lecture we have seen about the different formatting elements used for your web designing for the text. Okay. Now in this lecture we are going to study the different heading levels. Okay. So HTML provides 6 levels of heading tag. The range is from 1 to 6. These heading levels are represented as H1 text contain whatever the data you want to write and /H1. The H1 tag displays the text in bold with largest heading level, whereas H6 displays the text in the smallest heading level. Okay, now what is the use of heading tag? Heading tag, if you want to assign an heading to your HTML document, then the heading to your HTML document is assigned by using the heading tag, heading levels. Okay, so there are 6 different heading tags which are used for assigning the heading to your document. So H1 to H6 are the 6 different heading levels you all can use to assign a heading in your program. That is, in HTML program, if you want to assign an heading to your document, तो आप वो heading assign कर सकते हो by 6 different tags. H1 to H6 ये 6 different tags है जहाँ पे आप heading assign कर सकते हो आपके HTML document में. उसमें से H1 is the highest heading level. ओके, अगर आप H1 यूज कर रहे हैं एंड जो भी डेटा आप H1 में राइट करोगे टैग के अंदर, दैट विल बी द हाईएस्ट हेडिंग लेवल ऑफ योर HTML प्रोग्राम. तो हाईएस्ट हेडिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? H1 टैग यूज करते हैं. वेयरएज अगर आपको स्मॉलेस्ट हेडिंग देनी होगी, स्मॉल हेडिंग देनी होगी, तो उसके लिए आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? H6. H6 इज यूज्ड फॉर द स्मॉलेस्ट हेडिंग लेवल. Okay, understood? What is the use of heading tag? Heading tag is used to assign an heading to your HTML document. We have 6 different levels of heading tags assigned in an HTML document. तो heading tag के लिए हमारे पास 6 different heading tags है जो हम HTML document में use कर सकते हैं. H1, H2, H3, H4, H5, H6 ऐसे 6 different heading tags हम use कर सकते हैं. उसमें से अगर आप H1 टैग यूज कर रहे हैं तो H1 टैग ये किसके लिए यूज किया जाता है? लार्जेस्ट हेडिंग साइज करके डिफाइन किया जाता है. वेयरएज अगर आप H6 यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका जो भी रहेगा वो भी रहेगा स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग. ओके, सो H1 इज फॉर लार्जेस्ट एंड H6 इज द फॉर द स्मॉलेस्ट. ओके, एंड इन बोथ योर टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन द बोल्ड लेटर्स. सो दिस इज अबाउट द हेडिंग टैग. Now here we will see a small example which will be based on your heading levels. Okay, तो यहाँ पे एक example दिया है जिसमें आपको different types के heading level से output कैसे आएगा वो display किया है. सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है doc type HTML. As you all are familiar, doc type HTML से यहाँ पे क्या होगा कि आप document type declaration कर रहे हो कि आप कौन सा document write कर रहे हो? HTML document. Again, जब भी हम कौन सा HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग टैग कौन सा रहना चाहिए? HTML टैग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTML इज द स्टार्टिंग टैग. आफ्टर HTML टैग कौन सा टैग यूज किया गया है? हेड टैग यूज किया गया है. हेड टैग HTML का प्रोग्राम राइट करने के लिए वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड सेक्शन एंड द बॉडी सेक्शन. तो हेड सेक्शन में हमने कौन सा टैग लिया है? टाइटल. Every time if you want to assign the title to your browser, then that is assigned in the title tag which is included inside your head tag. Head tag के अंदर आपका कौन सा टैग यूज किया जाता है? टाइटल टैग यूज किया जाता है. What is the use of title tag? टाइटल टैग से क्या होगा कि आपके इसको टाइटल असाइन किया जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ टाइटल, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल हेडिंग लेवल्स स्लैश टाइटल. इसका मीनिंग क्या होता है ये सेंटेंस का? कि आपने टाइटल असाइन किया है. What is the title for your program? Heading levels. And once title tag is completed, आपका heading टाइटल देना complete हुआ तो जो आपका टाइटल टैग यहाँ पे ओपन था वो क्लोज किया by using \title. ओके, आफ्टर दैट इज स्लैश हेड. स्लैश हेड क्यों किया? क्योंकि हमारा हेड सेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ है तो हमारा जो हेडिंग हेड का टैग ऊपर यहाँ पे ओपन था आप देख सकते हो वो यहाँ पे हमने क्या किया है? क्लोज किया है. नाउ नेक्स्ट कौन सा आता है कि बॉडी सेक्शन आता है. आफ्टर हेड सेक्शन वी राइट द बॉडी सेक्शन. ना बॉडी सेक्शन में हमने क्या लिया है? बॉडी टैग है, बीजी कलर है उसका एट्रीब्यूट है. बीजी कलर स्टैंड्स फॉर द बैकग्राउंड कलर और हमने बैकग्राउंड कलर कौन सा असाइन किया है? स्काई ब्लू.
तो ये सेंटेंस से क्या होगा कि आपका जो भी आउटपुट रहेगा उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर असाइन हो जाएगा, स्काई ब्लू कलर असाइन हो जाएगा। ओके, so this is the statement in which you all will understand that you have to assign the background color to your document as sky blue। उसके बाद नेक्स्ट H1 है। H1 ये हाईएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग है। हाईएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग कौन सी रहती है तुम्हारी, H1। सो यहाँ पे आप देख सकते हो H1 हेडिंग लेवल 1 टेक्स्ट इन द लार्जेस्ट साइज। आप कुछ भी डेटा राइट कर सकते हो। मेरा डेटा राइटिंग कंप्लीट हुआ है, तो जो H1 टैग यहाँ पे आपने ओपन किया है वो H1 टैग यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लोज किया है। सिमिलरली H2, H3, H4, H5, H6 जो 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग टैग्स थे वो हमने यहाँ पे एक के नीचे एक यूज किए। ओके, एंड लास्टली मेरा डेटा जो भी राइट करना था बॉडी सेक्शन में वो कंप्लीट हुआ है। तो जो बॉडी टैग यहाँ पे ओपन था वो बॉडी टैग हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड लास्टली हमारा HTML टैग क्लोज होगा। इन दिस वे ये हमारा क्या हुआ है, एक सिंपल प्रोग्राम हुआ है जिसमें हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग दिखाया। अभी ये प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आना चाहिए, सबसे बड़ी जो भी फॉन्ट साइज रहेगी वो किसके लिए, हेडिंग के लिए असाइन होगी H1, फिर उससे थोड़ा छोटा फॉर H2, उससे छोटा फॉर H3 एंड सो ऑन, एंड H6 में सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग साइज अलोकेट होगी। सो आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल बी लाइक दिस। अभी यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में हेडिंग लेवल 1 टेक्स्ट इन द लार्जेस्ट साइज की जो फॉन्ट साइज है दैट इज बिग एज कंपेयर टू 2, 3, 4, 5 and 6, and the heading level of 6 is comparatively small or smaller as compared to other heading levels। Understood कि यहाँ पे हमें समझ में आया है कि हेडिंग टैग्स हमने कैसे यूज करना चाहिए। और ये था उसका आउटपुट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज all heading levels have the attribute align along with values left, right and center। तो जब भी आप नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप हेडिंग टैग यूज करोगे तो हेडिंग टैग को आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो हेडिंग टैग के लिए, तो हेडिंग टैग के लिए आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ना व्हाट इज द यूज ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट से क्या होगा कि आप जो भी हेडिंग असाइन कर रहे हो वो आपकी अलाइन हो जाएगी। एक आप हेडिंग राइट साइड में दे रहे हो, लेफ्ट साइड में दे रहे हो या सेंटर में दे रहे हो, दैट विल बी डिफाइंड बाय द attribute align। So what is the use of align, align will be used or align will help you to find the different heading levels like with values left, right and center। तो ये 3 वैल्यूज रहेगी जो आप अलाइन के साथ यूज करोगे। समझ में आया? जैसे यहाँ पे हमने बॉडी के साथ बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज किया था, वैसे आप हेडिंग के लिए कौन सा यूज यहाँ पे बॉडी के साथ हमने बीजी कलर यूज किया था, वैसे आप हेडिंग के साथ कौन सा यूज कर सकते हो, अलाइन यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? एंड अलाइंस की वैल्यू आप कौन सी दे सकते हो, 3 वैल्यूज अलाइन के लिए आप दे सकते हो, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया है कि इफ यू वांट टू राइट द हेडिंग इन सेंटर तो आप कैसे लिखोगे, H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। मतलब आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे राइट करोगे वो कहाँ पे जाएगी, आपके सेंटर में डिस्प्ले होगी बाय यूजिंग अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अगर आपको राइट में चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, H1 है अलाइन इज इक्वल टू राइट। अगर आप अलाइन इज इक्वल टू राइट देते हो तो जो भी आपका डेटा रहेगा वो कहाँ पे ये होगा, राइट साइड से डिस्प्ले होने चालू होगा। सो इन दिस वे ये कैसे करेंगे आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज फॉर हेडिंग। अंडरस्टूड? So now in this way we have completed with the heading tag, and here is a question for you all. You all have to solve this question. Create a simple web page using following feature। आपको एक web page create करना है by using these features। The first feature is you all have to use the largest heading level biodata text in center, name in bold, address in italic, standard with underline। Okay? तो यहाँ पे आपको एक बायोडेटा एक वेब पेज क्रिएट करना है, ये फीचर्स यूज करना है कि आपको क्या करना है कि लार्जेस्ट हेडिंग लेवल जो है, लार्जेस्ट हेडिंग लेवल मतलब कौन सा टैग आपका आएगा यहाँ पे, H1 टैग। तो आपको H1 टैग यूज करके आपको क्या करना है, बायोडेटा ये टेक्स्ट प्रिंट करना है कहाँ पे, सेंटर में। तो आप क्या लिखोगे, H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और आपका टेक्स्ट क्या रहेगा, बायोडेटा। उसके बाद नेम इन बोल्ड, तो नेम के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, बोल्ड है तो बी टैग। एड्रेस इन इटैलिक, इटैलिक के लिए आपको कौन सा यूज करना पड़ता है, आई टैग। एंड स्टैंडर्ड विद अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए आप कौन सा टैग यूज कर रहे हो, यू टैग। तो आपको यहाँ पे बी टैग, आई टैग एंड यू टैग ये तीनों टैग का यूज करना है।
इन दिस वे आपको एक सिंपल प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है। तो एवरीवन ट्राई टू राइट दिस प्रोग्राम। Next, now note one important thing is that use any type of text editor to type the code and save it with filename.html or filename.htm. Use a browser to display the output. Now once you will write the program, then you are have to, as I have said you all previously, कि जब आपका प्रोग्राम राइट हुआ है तो वो प्रोग्राम आपको सेव करना रहता है। तो प्रोग्राम सेव करने के लिए आप क्या यूज करोगे, .html एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम के फाइल का नेम क्या दिया है, फाइल नेम .html एक्सटेंशन यूज किया है। इससे आप क्या कर सकते हो, आपकी फाइल सेव करोगे और फाइल एग्जीक्यूट करना है या फिर रन करनी है तो वो आप कहाँ पे डिस्प्ले करोगे, आपके ब्राउजर पे। वहां पे आपको आउटपुट डिस्प्ले होगा ऑफ द इनपुट विच यू हैव बीन रिटन। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एन इमेज, a horizontal ruled line and a paragraph. Now next point which we are going to study is how to insert an image, how to insert a horizontal ruled line and how to write a paragraph. So students, for inserting an image in your HTML document, the tag used for insertion of image is the img tag. So img tag is used to insert an image within a web page. Remember students, for inserting an image in your web page, which tag you all are going to use, img tag you are going to use. Okay, and the attributes which will be used for img tags are, there are different attributes which are used with your img tag. The first attribute is the src. Now what is the use of src tag? It is used to specify the path of an image file. The popular extension of an image file are PNG, JPG and GIF. So now students, for create, what is the use of image tag? तो image tag से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी HTML का वेब पेज हमने डिजाइन किया है उसमें हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें जब इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज करते हो। इमेज टैग के साथ कंपलसरी हमें जो एट्रीब्यूट यूज करना रहता है वो है SRC। SRC मतलब कि वहाँ पे हमें सोर्स मिलता है कि हमारी फाइल एग्जैक्ट कौन से लोकेशन पे सेव है। हमें वो पार्ट मिलता है इमेज फाइल का कि जहाँ पे हमारी फाइल सेव है बाय यूजिंग एट्रीब्यूट SRC। तो उसमें जो भी हमारा इमेज रहेगा उसके डिफरेंट जो भी पॉपुलर एक्सटेंशंस रहेंगे, जैसे PNG, JPG, GIF। तो ये क्या है, हमारे फाइल्स की जो भी एक्सटेंशंस है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी। सो SRC एट्रीब्यूट किसके लिए यूज किया जाता है, SRC एट्रीब्यूट में आपकी जो भी इमेज की फाइल है उसका स्पेसिफिक पार्ट आपको मिलता है, किसमें, SRC में। तो उसके डिफरेंट टाइप्स के एक्सटेंशंस है। कौन से एक्सटेंशंस यूज किए जाते हैं, जैसे PNG है, JPG है और GIF है। सॉरी, नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट यूज किया जाता है वो है हाइट। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ हाइट एट्रीब्यूट? तो हाइट एट्रीब्यूट से क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ एन इमेज इन पिक्सल। तो अगर आपकी इमेज की हाइट आपको पिक्सेल्स में डिक्लेयर करनी है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो, हाइट टैग। हाइट टैग से क्या होगा कि जो भी इमेज है आपकी उसका हाइट आप स्पेसिफाई कर सकते हो। whereas width अगर आप width एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तो उससे आपकी जो भी इमेज है उसका width आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो हाइट एंड विड्थ ये एट्रीब्यूट किसके लिए यूज किया जाता है, टू स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ योर इमेज विच यू आर टेकन फॉर डिजाइनिंग योर वेब पेज। द लास्ट इज द alt tag. Now what is the use of alt attribute? It is referred as alternate text which specifies the description of an image. तो ये क्या रहता है कि आपके अल्टरनेट जो भी टेक्स्ट की फाइल रहेगी वो डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट। मोस्टली अल्ट एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है कि जो हम इमेज लेते हैं वो इमेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर वो इमेज का डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ पे मिलता है, अल्ट एट्रीब्यूट से मिलता है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो IMG टैग के साथ हम कौन से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज करने वाले हैं, SRC, हाइट, विड्थ एंड अल्ट। ये 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इमेज टैग के साथ यूज करने वाले हैं। SRC का यूज क्या है कि SRC ये हमें स्पेसिफाई करता है कि हमारी इमेज फाइल का पाथ क्या है। द कॉमन एक्सटेंशन जो इमेज फाइल को रहते हैं वो कौन से रहते हैं, JPG, PNG एंड GIF।
सेकेंड रहता है तुम्हारा हाइट। हाइट में क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि आपकी इमेज की हाइट कितनी है। वेयरएज विड्थ में क्या होता है कि स्पेसिफाई किया जाता है कि आपकी इमेज की विड्थ कितनी है। एंड अल्ट एट्रीब्यूट से क्या होता है कि वहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले की जाती है, जहाँ पे आपको आपका इमेज का डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई किया जाता है। सो इन दिस वे दिस आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज्ड विद इमेज टैग। नाउ नेक्स्ट इज IMG, that is image is an empty tag. The standard code used in it is as follows. Image src is equal to desert.jpg, height is equal to something, width is equal to something, and alt is equal to desert image. So now this is the use of image tag. As I have said previously कि image tag ये empty tag है। इमेज टैग सिर्फ हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, उसके साथ हमें कंपलसरी उसके एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। कंपलसरी एक एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ता है इमेज टैग के साथ, वो कौन सा है तुम्हारा एसआरसी। सो एसआरसी इज द कंपलसरी टैग विच इज यूज्ड विद योर, इज द कंपलसरी एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड विद योर इमेज टैग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज ये मेरा टैग है, इमेज ये मेरा टैग है, एसआरसी ये एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट में हमें एक्सटेंशन दिया है या फिर पाथ दिया है जहाँ पे अपनी फाइल सेव है। अगर वो डेस्कटॉप पे रहेगी तो सिंपली आप इमेज का नेम दोगे तो भी फाइल एग्जीक्यूट होगी, पर अगर आपकी इमेज कौन से फोल्डर में स्टोर की है तो यहाँ पे आपको उसका पाथ कॉपी करना पड़ता है। हम एक प्रोग्राम लेंगे, लास्ट में थ्योरी खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल 2-3 प्रोग्राम्स लेंगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू इंसर्ट एन इमेज, इमेज कैसी लेनी चाहिए, इमेज कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम कैसे सेव करना है, रन करना है, वो हम एक प्रोग्राम देखेंगे बाद में। ओके, उसके बाद एवरी टाइम वैल्यू इज गिवन इन द डबल कोट। आफ्टर दैट हाइट इज नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज्ड इज हाइट। हाइट इज यूज्ड टू असाइन द हाइट ऑफ योर इमेज। सो हियर द हाइट ऑफ द इमेज इज गिवन एज 400 and width of the image is given again as 400 and the description is given that this is a desert image. So whatever the image we have taken, the extra information of that or description of that image is that we have taken the desert image. Understood? Next is the HR tag. Now what is the use of HR tag? HR tag is used for horizontal ruled line. Okay, what is the use of HR tag? So HR tag is used to display the horizontal ruled line. It is a singular tag. The attributes which HR tags are. Okay, again there are different attributes used with the HR tag. So now main, what is the use of HR tag? HR tag किसके लिए यूज किया जाता है? तो HR tag horizontal जो भी ruled lines रहेगी, horizontal lines अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज कर रहे हो? HR tag. HR tag ये सिंगुलर टैग है। मतलब क्या होता है कि सिंगुलर टैग मतलब क्या कि इसमें जो भी एट्रीब्यूट्स हम यूज कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम HR टैग के साथ यूज करने वाले हैं। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन से है? कलर है, विड्थ है एंड साइज है। There are 3 different attributes which are used with your HR tag. The first is the color. Now what is the use of color attribute? Sets the color for the horizontal ruled line. Width, it specifies the length of the ruled line in the percentage or pixel. And next is size. What is the use of size? Size makes the thickness of your ruled line. Okay, so यहाँ पे 3 different attributes use किए गए हैं with the HR tag. The first attribute used is the color. Now if you want to set the color for your horizontal ruled line, then you can use the attribute as color. So color attribute is used for setting the color for your horizontal ruled line. Second attribute is the width. Now what is the use of width? It will help you to specify the length of the line, and that length of the line will be given either in percentage or in pixel. So the value will be displayed of this by using the width attribute in HR tag. To display the length, that length will be displayed either in the percentage or in pixel value. The next is the size. Now what is the use of size? Size is an attribute which will be helping you all to set the thickness of your ruled line. Okay, so whatever the ruled line you all are using to set the thickness of that ruled line, you will use the attribute size.
So by using size attribute, you all can set the thickness of the ruled line. Now next is the p tag. Now what is the use of the p tag? Now the next tag, we have already seen what is img tag, what is hr tag, and now we are going to move forward and see what is p tag. So now student, what is p tag? P tag is used to define paragraphs. Remember student, what is the use of p tag? Now the use of p tag is just you are using it to define any type of paragraph. इट इज अ कंटेनर टैग. इट इज अ कंटेनर टैग मतलब क्या होता है कि वो पेयर टैग है. अगर आप ओपनिंग ऑफ पी कर रहे हैं तो क्लोजिंग ऑफ पी इज नेसेसरी. तो पी टैग ये किसके लिए यूज किया जाता है? पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए. सो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स देखे जो HTML के अंडर यूज किए जाते हैं. उसमें से फर्स्ट था आपका IMG टैग, सेकेंड है HR टैग, and third is p tag. P tag is used for writing or defining the paragraphs, whereas HR tag is used to display the horizontal ruled line in your document, and the IMG tag is an empty tag which uses the different attributes. That is, SRC is the compulsory attribute which is used with your image tag to define an image. Okay, so these are the some of the different types of tags in HTML. Now next we are going to move forward, that is how to create a table. Now next point which we are going to study is how to create a table in HTML. So creating a table in HTML common in general you all are familiar with. If I want to create a table, how a table is made? Table is made by collection of rows and columns. So rows and columns comes together and create a table. So first point students, here it is given that a table is made up of rows and columns. A table in a web page is created by using table tag, which is a container tag. The tags and attributes used to create a table are as follows. So यहाँ पे students अपने को जब भी table create करना है तो table कैसे create करते हैं? By using rows and columns. तो rows and columns के साथ हमारा क्या create होता है? Table. सो टेबल वेब पेज में मोस्टली कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय यूजिंग द टेबल टैग. टेबल टैग के साथ अगेन इट इज अ कंटेनर टैग, दैट इज वो पेड टैग है, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज नेसेसरी. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टेबल टैग इज नेसेसरी. सो देयर आर different types of attributes which are used with the table tag to create a table in an HTML. So the different types of attributes used to create a table are table tag, caption tag, tr tag, th tag and td tag. So these are the different tags which are used to create a table, and there are again different types of attributes to create a table. The different attributes to create a table is border, border color, align and bg color. Okay, so these are the different attributes and different tags which are used for creating a table in HTML. Okay, so in the next lecture students we will study which are the different tags and attributes used for table creation, and we will see an example that how to create a table in HTML. Okay, thank you.